Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released a series of informative videos tailored for CBSE Class X students on the topic of matter and our surroundings. These videos aim to enhance students' understanding of the scientific concepts related to matter and its properties, covering essential aspects such as states of matter, physical and chemical changes, and the behavior of particles. The videos provide a comprehensive explanation of the subject matter. The engaging visual content and simplified explanations make it easier for students to grasp complex ideas. By delving into the microscopic world of atoms and molecules, Ignited Minds Tutorials help students understand the behavior of different substances and their interconversion. These videos also shed light on the various factors affecting the states of matter, such as temperature and pressure. With matter and our surroundings being an important topic in the CBSE Class X science curriculum, Ignited Minds Tutorials is committed to equipping students with the knowledge and skills needed for academic excellence. These videos serve as a valuable resource for students to enhance their understanding, reinforce concepts, and consolidate their learning by providing comprehensive and accessible educational content. Ignited Minds Tutorials is empowering students to excel in their academic pursuits and harness the power of knowledge. With their dedication to delivering quality education, they continue to ignite young minds, guiding them towards success in the realm of science and beyond. Okay, so change of state हम देखेंगे people, the phase or state of matter can change when the temperature changes. तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन और लिक्विड का कन्वर्जन तो ये कब होगा, जब हम हीट दे रहे हैं, ठीक है. सो देयर इज अ हीट इन प्रोसेस इन्वॉल्व. ओके, ईच एडिशन ऑफ एनर्जी क्रिएट्स अ चेंज इन स्टेट. तो जैसे जैसे हम एनर्जी को ऐड करेंगे, ठीक है, देयर इज अ चेंज इन द स्टेट. ईच एडिशन ऑफ एनर्जी क्रिएट्स अ चेंज इन द स्टेट, ठीक है. ओके, तो जैसे अगर देखोगे सॉलिड्स को आपने एनर्जी दिया, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा. लिक्विड्स को आपने एनर्जी दिया तो ये गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है. सो दैट्स हाउ द चेंजेस हैपन. एज टेम्परेचर राइजेस मैटर मूव्स टू अ मोर एक्टिव स्टेट, ठीक है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे मैटर विल मूव टू अ मोर एक्टिव स्टेट. जैसे सॉलिड से ज्यादा एक्टिव स्टेट है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड से ज्यादा एक्टिव स्टेट है गैस, ठीक है. सॉलिड से ज्यादा एक्टिव स्टेट है लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा एक्टिव स्टेट है गैस. सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हमको कन्वर्जन होता दिखेगा, कैसे, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैसेस में. सो एज एंड व्हेन वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी विल सी दैट देयर इज अ ट्रांजिशन दैट इज हैपनिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड टू गैसियस स्टेट. Liquid state is more active than the solid state. Gaseous state is more active than the liquid state. Are we clear to this one, people? ठीक है? Okay. So the change in the state of matter is governed by kinetic theory of matter. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है. ये जो चेंज होता है किसमें, स्टेट ऑफ मैटर में. स्टेट ऑफ मैटर मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है, काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर. इट इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर, ठीक है. द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर विच हैपन्स प्राइमरली ड्यू टू एनर्जी चेंज, हम बोल सकते हैं. इस किस लिए होता है ये भाई साहब, प्राइमरली ड्यू टू एनर्जी चेंज, प्राइमरली ड्यू टू एनर्जी चेंज, और अपन बोल सकते हैं टेम्परेचर चेंज. सो दिस चेंज दैट हैपेंस इन मैटर इज गवर्न्ड बाय काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर. दिस इज बेसिकली गवर्न्ड बाय काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, तो आपका स्पेस कितना है भाई साहब पार्टिकल्स के बीच में. What is the space between particles? The force of attraction between the particles. What is the force of attraction that is there between the particles and the kinetic energy of the particles? इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा. The space between the particles कितना है, ठीक है. The kinetic theory of matter बोलता है कि भाई साहब किन किन चीजों पे होगा, कितना स्पेस है. हमने देखा कि सॉलिड में स्पेस सबसे कम है, लिक्विड में स्पेस मॉडरेट है और गैसेस में स्पेस सबसे हाई है. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम IMF की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड्स इज द हाईएस्ट, IMF इन लिक्विड्स इज अगेन मॉडरेट एंड IMF इन गैसेस इज लोवेस्ट. समझ में आ रहा है ये दोनों चीजें हो गई. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर हम,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी किस में सबसे ज्यादा होगा भाई साहब? आपके गैसेस में सबसे ज्यादा होगा। देखो क्या क्या चीजें हैं, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ना, ठीक है। तो इन काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर जो है इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर, ठीक है। काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर इज गोइंग टू डिपेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स। पहला हो गया स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स में अगर आप देखोगे, ठीक है, सॉलिड और सॉलिड में जो स्पेस है दिस इज द लीस्ट, दिस इज लेस देन लिक्विड में, एंड दिस इज लेस देन गैस में। गैस में सबसे ज्यादा स्पेस है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दूसरा क्या हो जाएगा बोलो? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। सो इसमें आपका देखो सॉलिड में सबसे ज्यादा आईएमएफ होगा, ठीक है। इट इज मोर देन आईएमएफ इन लिक्विड एंड दिस इज मोर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैसेस एंड गैसेस। थर्ड थिंग आपका जो है काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर में, वो क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो गैसेस का होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड्स एंड दिस इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। सो काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर क्या बोलता है? व्हाट डज काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर स्टेट? दैट it depends upon space between the particles, intermolecular forces of attraction between the particles and kinetic energy of the particles. Space between the particles, solid space is lesser than liquid space, and this is lesser than gas space. Intermolecular force of attraction between solids is more than liquids, is more than gases. Kinetic energy of particles, kinetic energy of gases is more than kinetic energy of liquids, and this is more than kinetic energy of solids. Are we clear to this one people? ठीक है। सो ये हो गया आपका क्या भाई साहब? दीज आर बेसिकली द थिंग्स, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। दीज आर द थ्री डिपेंडेंट फैक्टर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर या काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर तीन चीजों पे डिपेंडेंट है, स्पेस, काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड्स में, और सबसे कम किस में होगा? गैसेस में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स किसमें सबसे ज्यादा होगा? गैसेस में, और सबसे कम किसमें होगा? सॉलिड्स में। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैसेस में, और सबसे कम किसमें होगा? सॉलिड्स में। तो काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ये ठीक है, ओके। इसी पे आधारित होगा आपका क्या? ये कन्वर्जन, ये जो सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है या लिक्विड से गैस का कन्वर्जन हो रहा है, इट ऑल हैपेंस ड्यू टू काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर। ये काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर पे प्रॉपर्ली डिपेंडेंट है। आर वी क्लियर टू दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं भाई साहब, आपने आइस रख दिया, ठीक है, आइस रख दिया तो उसने हीट गेन किया और किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। किसी ने वाकई में आइस मेल्टिंग के प्रोसेस को देखा है? Okay, so what is it that you have observed? Okay. Okay, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है कि आइस को जब आप मेल्ट करा रहे हो, ठीक है, तो आइस भाई साहब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में। एनीथिंग एल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व? ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समझ लो मैंने ना यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा दिया, समझ लो भाई साहब, ठीक है, कैसा भी करके एक थर्मोमीटर लगा दिया, ठीक है। ये थर्मोमीटर हम मुझे क्या दिखा रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको, ये ऑब्वियसली मेल्ट हो रहा है, ठीक है, मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने के टाइम पे तुम्हें क्या ऑब्जर्व होगा? व्हाट विल यू ऑब्जर्व? मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है, जब तक ये पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक आपको थोड़ा भी टेम्परेचर में राइज नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अंटिल एंड अनलेस, ठीक है, until and unless the entire ice melts, you will not observe
a single degree rise in temperature, a single degree rise in temperature, जब तक ये पूरा आइस ना मेल्ट हो जाए, ठीक है। मतलब अगर आपने थर्मोमीटर को लगाया है आइस के अंदर और अगर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिखाएगा, देयर विल नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट राइज इन द टेम्परेचर। जैसे ये पूरा पानी में मेल्ट हो जाएगा तब जाके आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? जब तक आपका पूरा का पूरा आइस, चाहे वो 500 ग्राम का आइस हो, चाहे 1 किलो का आइस हो, चाहे 5 किलो का आइस हो, जब तक पूरा आइस ना मेल्ट हो जाए तब तक आपका टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज नहीं दिखाएगा। द मोमेंट द एंटायर आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, देन यू विल सी द टेम्परेचर इज राइजिंग। 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, ऐसा जाएगा। समझ में आ रहा है ये? तो इसका मतलब क्या है? देखो, जब आप किसी बॉडी को हीट देते हो, वेन एवर यू सप्लाई हीट टू अ बॉडी, उसमें सबसे पहला चीज आप क्या देखते हो? राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर। आप जब किसी बॉडी को हीट देते हो तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑब्जर्व? राइज इन टेम्परेचर। मैं इस आइस को हीट दे रहा हूं, लेकिन क्या मुझे राइज इन टेम्परेचर दिख रहा है? नहीं। जब तक पूरा पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आप इसमें राइज इन टेम्परेचर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब ये हीट कहां जा रहा है? वेयर इज दिस हीट गोइंग? फिर से बोल रहा हूं, आपने आइस रखा और आप उसको हीट कर रहे हो। जब तक आप हीट दे रहे हो यू विल नॉट सी अ सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर, उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी राइज नहीं होगा। जब ये पानी में कन्वर्ट हो गया देन यू विल सी दैट देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर। सो वेयर इज दिस हीट गोइंग ऑल दिस वाइल? नहीं, आइस क्यूब के ऊपर के लेयर में नहीं, राइट। तो आप देखो हमने क्या पढ़ा है, ये आइस के मॉलिक्यूल्स हैं। सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, इतने कॉम्पैक्टली पैक नहीं होते, ठीक है। तो इस स्टेज से इस स्टेज में जाने के लिए हीट यूज हो रहा है, ठीक है, और इसीलिए आपको टेम्परेचर में राइज नहीं दिख रहा है, ठीक है। यू आर नॉट सीइंग अ राइज इन टेम्परेचर, द हीट इज गेटिंग यूज्ड अप इन मेल्टिंग। पूरा का पूरा हीट किस में यूज हो रहा है? मेल्टिंग में यूज हो रहा है, इसीलिए आप टेम्परेचर में राइज नहीं देख पाएंगे। यू विल सी द राइज इन टेम्परेचर ओनली व्हेन दिस एंटायर आइस हैज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, देखो आप सॉलिड को हीट कर रहे हो ना, ये सॉलिड है लेट्स से, ठीक है, ये सॉलिड भाई साहब, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, 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 ठीक है। जैसे ये मेल्ट होना चालू हो जाएगा तो ये पूरा फ्लैट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आइस पहले देखो थोड़ा सा मेल्ट हुआ, फिर थोड़ा सा मेल्ट हुआ, फिर थोड़ा सा मेल्ट हुआ, फिर पूरा मेल्ट हो गया। लेकिन ये प्रोसेस जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर हीट यू आर सप्लाइंग, in spite of whatever heat you are supplying. So what is happening is this heat is getting converted into the conversion of matter, ठीक है। यहाँ पे मैटर का कन्वर्जन हो रहा है from solid to liquid state. This heat is getting used up for conversion of matter and that's the reason you are not able to see a single degree rise in temperature, ठीक है। जैसे ये वाटर में कन्वर्ट होता है तब आप देखोगे पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ऐसा बढ़ता जाएगा भाई साहब। ऐसे करते करते कहां पे आ जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर क्या होने लगेगा? बॉयल होने लगेगा, वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व इज अगेन वही सेम चीज, ठीक है। आप देखोगे कि भाई साहब जब तक ये पानी है और आपने फिर से एक थर्मोमीटर डाल दिया लेट्स से, अभी पानी को हीट कर रहे हैं और इस थर्मोमीटर में आपको टेम्परेचर दिखा रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगेन ये लॉक हो जाएगा। अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से एक भी टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो ये हीट कहां जा रहा है? दिस हीट इज बेसिकली गोइंग इन कन्वर्टिंग इट इनटू वाटर वेपर या गैस में फॉर्मेट, ठीक है। तो आप अभी क्या देख रहे हो? लिक्विड का गैस में कन्वर्जन देख रहे हो, और इसीलिए जब तक ये पूरा का पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आप थर्मोमीटर में टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही पाओगे, ठीक है। सो until unless the entire amount of water is not getting converted into vapor, ठीक है, you will see that the temperature showing in the thermometer is going to remain at 100 degree centigrade. It's not going to show any kind of rise. क्या ये समझ में आ रहा है? तो 2 बार आप देखोगे टेम्परेचर लॉक हो जाएगा, कब? सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस के कन्वर्जन में। और देखो जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे बुखार आया है, मुझे फीवर आया है, हाउ वुड आई नो? कैसे? टेम्परेचर से, मतलब हाथ लगा के नहीं, आप थर्मोमीटर से पता करेंगे, है ना। आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे अगर ज्यादा आपका टेम्परेचर है तो आपको फीवर आया है, राइट, ठीक है।
यहां पे हीट आप दे रहे हैं किसी बॉडी को, लेकिन उसमें कोई टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको ऐसा बोलूं कि समझ लो आग जल रही है यहाँ पे और मैंने हाथ को सेका, ठीक है, अभी मैं वहां पे थर्मोमीटर लगा रहा हूँ, क्या इट विल शो राइज इन टेम्परेचर? मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे, राइज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप किसी बॉडी को हीट देते हैं देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर है। किसी भी बॉडी को आप भाई साहब ऐसे ऐसे करो, देखो आपका हाथ गर्म हो गया, ठीक है। किसी भी बॉडी को जब आप हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर राइज विल हैपन ऑटोमेटिकली, बट हियर इट इज नॉट हैपनिंग। In spite of heat being given, there is no rise in temperature. So it means that the heat is getting used up in something else. And what is that something else? The conversion of solid to liquid state. ठीक है, हीट इज गेटिंग, इस हीट को आप देख नहीं सकते क्योंकि टेम्परेचर में ये दिखा नहीं रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं गुप्त हीट। गुप्त हीट का नाम, अलग नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? लेटेंट हीट। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है मेल्टिंग, मतलब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, ठीक है, क्लियर है। और वैसे ही यहां पे भी जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो अगेन यू सी दैट द टेम्परेचर इज जस्ट लॉक्ड अप एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड until and unless the entire water gets converted into gas, ठीक है, और water vapor, it is locked up at 100 degree centigrade. It will not show a single degree rise in temperature, ठीक है। So इसका मतलब क्या हो रहा है, जितना भी हीट इस दौरान आप सप्लाई कर रहे हैं, it is not showing any corresponding rise in temperature. That heat is getting used up from converting liquid to gaseous state. And until unless the entire liquid gets converted into gaseous state, you will not see a single degree rise in temperature. Again, इसको अपन क्या बोलेंगे? गुप्त heat. So that is known as latent heat of vaporization. This is known as latent heat of vaporization. Are we clear to this one, people? So latent heat of fusion is the amount of heat that is required to convert solid to liquid, and latent heat of vaporization will be the amount of heat that is required to convert from liquid to gaseous state. इसके अलग मापदंड है, वो हम देखेंगे, ठीक है। ये आपका सॉलिड है भाई साहब, सॉलिड को आप हीट कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर एज टेम्परेचर राइजेस, तो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से और टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर राइजेस, सॉलिड टू लिक्विड, इट टर्न्स इनटू लिक्विड, पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे ही सॉलिड से लिक्विड होता है तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स में डिस्टेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स will have a certain amount of distance, ठीक है, particles will have a certain amount of distance. As the temperature increases more, और ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ता है, it turns into steam and particles move apart. तो भाई साहब अभी ये steam बन गया है, ठीक है, it is turned into gas. तो it is turned into gas. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? इसको रख देना इधर, मैंने सप्लीमेंट रख दिया इधर, जिसको लेना हो लेना, उसको जरा कुछ रख दिया, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इट टर्न्स इनटू स्टीम। सो आपने देखा कि कन्वर्जन ऑफ मैटर हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, टेम्परेचर स्केल, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। आपने कितने टाइप के टेम्परेचर स्केल्स पढ़े हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक टेम्परेचर के स्केल्स याद करो, तुमने सवाल किए हैं इस पे मैथ्स में। सेल्सियस, केल्विन, केल्विन एंड सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन किसी को याद है? सेल्सियस इनटू 9/9/5 35 में 32, ठीक है, ओके। तो ये 3 स्केल्स हैं आपके, सेल्सियस, केल्विन और आपका तीसरा स्केल हो गया कौन सा? फ़ारेनहाइट। जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में यूज होता है वो है केल्विन, बाकी हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन्स करते हैं, ठीक है, ओके। सो वी विल सी व्हाट आर टेम्परेचर स्केल्स। सो मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज बेसिकली टेम्परेचर। आप कब बोलेंगे कि आपको फीवर आया है? जब आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक है। सो मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस, एक बॉडी का जो मेजर होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, उसको अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, ठीक है। मैं बोलूंगा इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब ये हॉट है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि इस बॉडी का टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब वो कोल्ड है, ठीक है। सो टेम्परेचर इज व्हाट? मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन 3 स्केल्स।
क्या क्या 3 स्केल्स हो गया देखो, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। कैन प्लीज नोट्स बी मेड ऑफ द सेम, ठीक है। ओके, तो आपका एक हो गया सेल्सियस स्केल जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखते हैं, केल्विन स्केल। ध्यान रहे केल्विन पे हम कभी भी डिग्री ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ केल्विन रहेगा, कोई डिग्री नहीं। डिग्री फ़ारेनहाइट को अपन डिग्री ऐसा देखो, ये दिस इज बेसिकली द सिंबल ऑफ डिग्री, तो डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दीज आर द 3 स्केल्स ऑन विच वी हैपन टू मेजर टेम्परेचर। ये जो केल्विन वाला स्केल है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। सारे एक्सपेरिमेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे आप केल्विन में टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है, क्लियर है। बाकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हमारे लिए लोकल मोड्स ऑफ मेजरमेंट है। ओके ओके ओके, चलिए, तो कॉमन स्केल इट वाज नेम्ड आफ्टर एंड्रिस सेल्सियस हु डिस्कवर्ड इट बेसिकली, ठीक है। एसआई यूनिट जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज बेसिकली एसआई यूनिट, और ये किसके नाम पे है भाई साहब, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन हु वाज बेसिकली द आर्किटेक्ट ऑफ दिस। एंड देन द डॉक्टर स्केल दैट इज फ़ारेनहाइट, इसको अपन फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कॉमन स्केल विच इज सेल्सियस स्केल, डॉक्टर स्केल which is the Fahrenheit scale, and the SI unit is basically Kelvin. So we have 3 ways of measuring temperature. Clear है people? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। Okay, what do we have? Kelvin scale, temperature at which gas is cooled to obtain zero volume, ठीक है। What is the temperature? यहाँ पे होगा -273.15, ठीक है। This is basically absolute zero, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सच अ वॉल्यूम एंड बिलो आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ऑब्टेन। ये इतना लो टेम्परेचर ऑब्टेन होना ही पॉसिबल नहीं है। मैटर विल सीज टू एग्जिस्ट, मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सच अ वॉल्यूम एंड बिलो आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ऑब्टेन, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं हम इसको। हेंस ऑल टेम्परेचर्स आर पॉजिटिव, सारे टेम्परेचर्स भाई साहब आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, देखो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ सेल्सियस में आप -30 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट में भी आप लेट्स से 31 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। लेकिन जब आप केल्विन पे आते हैं तो ये 0 केल्विन ही बोल सकते हैं, और इसके ऊपर ही सब होगा, नीचे कुछ नहीं, क्योंकि 0 केल्विन ही होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना कम होता है, ठीक है। तो हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं। इन दोनों स्केल्स में, कौन से, सेल्सियस के स्केल में और फ़ारेनहाइट के स्केल में, हम नेगेटिव में भी जा सकते हैं और पॉजिटिव में भी। केल्विन स्केल में हमारा 0 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव ही होगा। केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो नो, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सेल्सियस स्केल या और सेंटीग्रेड स्केल में, सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल में, ठीक है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम देखेंगे भाई साहब केल्विन के स्केल में, केल्विन स्केल में पॉजिटिव ही पॉसिबल है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। और अगर हम देखेंगे भाई साहब फ़ारेनहाइट के स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी पॉसिबल, ठीक है, क्लियर है। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल विल हैव टेम्परेचर्स बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स, but Kelvin scale will only have in positive forms. मतलब every temperature in Kelvin scale has to be greater than 0. और Kelvin scale में हम कैसे representation करते हैं, ये Kelvin, डिग्री नहीं लगाएंगे, ऐसे यहाँ पे अगर डिग्री लगा लिया दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, जस्ट केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, केल्विन टू सेल्सियस, तो केल्विन को देखो आपके लिए 273.15 नहीं है, 273 प्लस सेंटीग्रेड, तो केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैं अगर बोलूँ आपको कि अभी टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, कन्वर्टेड इनटू केल्विन, तो केल्विन में कितना टेम्परेचर हो जाएगा बोलो, 273 प्लस 15 प्लस करोगे आप 3 + 5 8, 7 + 1 8, तो 288 केल्विन हो गया। तो हम बोल सकते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 288 केल्विन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ अभी टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा 273 और इसके जगह पे आपका -30 डिग्री, ठीक है, 30, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 3 7 से 3 गया 4, 243 केल्विन, ठीक है, ये हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर। तो 273 केल्विन,
चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं यहाँ पे। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन स्केल। चलिए कीजिए इसको फटाफट फटाफट, एकदम फटाक से हो जाना चाहिए। Sir, 298 ओके। तो क्या किया आपने, देखो केल्विन का टेम्परेचर क्या होता है 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, सो दैट विल बी 273 प्लस 25 दैट्स 298। किसी किसी बुक्स में, ठीक है, तो आपका यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 298 केल्विन। कहीं कहीं पे आपका ये 273.15 लिखते हैं हम, 273.15। इन सम प्लेसेस वी राइट 273.15, मतलब ज़्यादा करके बुक्स में इसको कंसिडर करते भी कई कई पे और नहीं भी करते हैं। बट अगर आप 273.15 लिखा रहेगा तो घबराइएगा मत, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, 273 है, ठीक है। ओके, 298 केल्विन वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल वुड बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, दैट इज 25 प्लस 273, दैट इज 298। Thus, a temperature of 25 degrees centigrade on Celsius or centigrade scale is equal to 298 Kelvin on the Kelvin scale. Are we clear to this one people? हम समझ में आता हम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू सेल्सियस स्केल। चलिए ध्यान रखिए, यहाँ पे केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ट्वेंटी सेवन, चलिए करते हैं। देखो यहाँ पे केल्विन स्केल इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी भाई साहब हमको यहाँ पे अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस 273, के की वैल्यू कितनी है 300 माइनस 273, ये हो जाएगा कितना भाई साहब डिग्री सेंटीग्रेड में, 3 + 7 10 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। सो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है आपको कितना है 300 है, तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल विल बी हाउ मच 300 माइनस 273। जब आप इसको इधर लाओगे, तो 300 माइनस 273 हो जाएगा, दैट विल बी हाउ मच 27। क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो दिस विल बी 27। दस अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन to the Kelvin scale is equal to 27 degree centigrade on the Celsius scale. Are we clear on this one people? हम okay. अभी हम interconversion of states of matter देखेंगे people. What do we mean by interconversion of states of matter? ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे आपका भाई साहब लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है। तो जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो ये बनता है लिक्विड, लिक्विड को हीट करते हो फ्यूजन बोलेंगे हम उसको, या मेल्टिंग बोलेंगे। लिक्विड को हीट करते हो तो वो बनता है गैस, इसको क्या बोलेंगे हम? वेपराइजेशन। और गैस को जब आप कूल करोगे तो क्या बनेगा? लिक्विड। लिक्विड को कूल बनोगे तो बनेगा सॉलिड, ठीक है। तो ये आपका कुछ सॉलिड्स, लेकिन सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? सबलाइम सॉलिड्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ सबलाइम सॉलिड्स आर नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, कपूर जिसको हम बोलते हैं, और अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ठीक है, एंथ्रासीन, ये सब आपके सबलाइम सॉलिड्स है। मैंने लिखा है ये ना? नहीं, ओके, ठीक है। सबलाइम सॉलिड्स मतलब क्या होगा? सबलाइम सॉलिड्स में ये सॉलिड से आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन जब होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और वैसे ही गैसेस को कूल करने से डायरेक्टली जब सॉलिड बनता है तो इस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं सब्लिमेशन। नो, बोथ द प्रोसेसेस आर नोन एज सब्लिमेशन। नहीं, सॉलिड का गैस में कन्वर्जन और गैस को कूल करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्जन, तो दिस विल बी नोन एज सब्लिमेशन। बोथ आर प्रोसेसेस नोन एज सब्लिमेशन। ओके, यहाँ पे एक चीज देखो, सबलाइम सॉलिड्स कौन कौन से हो जाएंगे? सबलाइम सॉलिड्स हो गए आपके नैप्थलीन हो गए, कैम्फर, कपूर जिसको हम बोलते हैं, और भाई साहब हो गया आपका आयोडीन और एंथ्रासीन,
ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, एंड देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे आपके क्या हो गए? व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स नोन एज? दीज आर नोन एज सबलाइम सॉलिड्स, ठीक है, सब के सब आपके सबलाइम सॉलिड्स हो गए। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो मतलब इन सॉलिड्स को अगर आप हीट करेंगे, दे विल गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस, एंड इफ यू हैपन टू कूल देम अगेन दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, तो सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं और वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? मेल्टिंग और फ्यूजन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। क्लियर है? ओके ओके। नाउ इफ वी हैपन टू हीट द लिक्विड, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम इवेपोरेशन हैपेंस, तो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज नोन एज वेपराइजेशन, ठीक है, और दैट हैपेंस मैक्सिमम ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सॉलिड का गैस में कन्वर्जन होना डायरेक्टली हीट से, इसको अपन क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन, ठीक है, ओके। गैस को अगर हम कूल करते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, ठीक है, ओके। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट करना, जैसे आपका पानी बर्फ हो जाना, तो वो कहाँ पे होता है? फ्रिज में होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? फ्रीजिंग, ठीक है, ओके। देखो, जैसे मैंने आपको बोला था, सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो वो गैस बनता है, दैट प्रोसेस इज सब्लिमेशन, और जब गैस को आप कूल करते हो तो सॉलिड बनता है, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन, बोथ वेज, ठीक है। द इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली टू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन, एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है, क्लियर है? और सबलाइम सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हुए हैं, ओके। सो नाउ effects of change of temperature. So what are the effects of change of temperature? Solid to liquid, this happens during melting. आपका भाई साहब ये जो टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो, ये सॉलिड भाई साहब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। द प्रोसेस इन विच a solid substance changes into a liquid on heating is called melting or fusion, ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड, एक सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में कन्वर्जन होना ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। तो एक सॉलिड को आप हीट कर रहे और आप उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड at atmospheric pressure is called melting point of a substance, ठीक है। ऐसा देखो, इसका डेफिनेशन है बेसिकली, टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्यों लिया गया है? क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप बढ़ाते हो ना, जैसे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक ओपन कढ़ाई में कोई भाजी बना रहे हैं, ठीक है, और वही भाजी को आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, कौन सा जल्दी बन जाएगा? प्रेशर कुकर में। क्यों जल्दी बन रहा है? हीट तो आप दोनों में सेम दे रहे हैं, ठीक है, वही गैस है, वही हीट है। आपका जो भाजी आप ओपन कढ़ाई में बना रहे हैं, ये टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको जल्दी बनाना है, प्रेशर कुकर में डाल दीजिए, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर हाई है, तो जब आप प्रेशर को हाई करते हैं तो आपका भाई साहब फ्यूजन पे इफेक्ट आता है, इसीलिए हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। दैट इज द रीजन वी आर रेफरिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस गेट्स चेंज्ड इनटू अ लिक्विड सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। इसको आपको लिखना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्योंकि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो कम टेम्परेचर पे वो काम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप ओपन कढ़ाई में भाजी को बना रहे हैं और प्रेशर कुकर में, तो आपका प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाएगा। सो व्हाट हैज हैपेंड? मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया है। सो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। इस टेम्परेचर पे भाई साहब ये कन्वर्ट हो जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
उनके पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। एक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दिखाएगा, जैसे अगर आप देखोगे ड्राई आइस जो होता है, या लेट्स से आयरन स्ट्रांग होता है, आयरन स्ट्रांग होता है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। दैट्स अ वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। 1500 डिग्री मतलब आप सोचोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी खौलने लगेगा, ठीक है। इसलिए तो हमारे ज़्यादा करके चीज़ें जो बनती है वो आयरन से बनती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, मेल्टिंग पॉइंट, जब वो मेल्ट हो जाएगा। अगर आप देखोगे आइस, आइस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। 100 डिग्री नहीं, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट हो जाएगा। इट विल बेसिकली मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आयरन का अप्रॉक्सीमेट मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आयरन में, ठीक है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर मोर स्ट्रॉन्गर इन आयरन एंड हेंस इट रिक्वायर्स अ हायर टेम्परेचर फॉर इट्स मेल्टिंग देन आइस। आइस विल रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर फॉर इट्स मेल्टिंग। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो ये हो गया आइस, इसको अपन ने भाई साहब हीट किया, ये बन गया वाटर, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज अप्रॉक्सीमेटली 1535 या 38 पे वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, लिक्विड टू गैस, अभी हम बात करेंगे लिक्विड टू गैस। तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट पे किसी लिक्विड को हीट करते करते उसके बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है। दिस इज नोन एज वेपराइजेशन। ओके, सो वेपराइजेशन इज बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ये वाटर है भाई साहब, इसको अपन ने हीट किया तो ये क्या बन गया, स्टीम। वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड सब्सटेंस रैपिडली गैस में कन्वर्ट हो जाता है इज कॉल्ड बॉइलिंग। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें भाई साहब क्या हो रहा है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स, जब वो बॉयल करने लगता है, टकपक वैसा बॉइलिंग देखा होगा आपने, वाटर खोलने लगता है, चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर से देखो हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called the boiling point of the liquid. तो melting point क्या हो गया, the temperature at which a liquid melts, ठीक है, at atmospheric pressure is known as the melting point of the liquid. The temperature at which a liquid boils at atmospheric pressure and gets converted into gas rapidly is known as the boiling point of the liquid, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जैसे है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आपका 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कौन जल्दी बॉयल करने लगेगा, ऑब्वियसली आपका अल्कोहल जल्दी बॉयल करने लगेगा, ठीक है। कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है, गैस टू लिक्विड। जैसे आपने लिक्विड को हीट दिया तो वो क्या बनाता है, लिक्विड को जब आपने हीट दिया, व्हेन यू आर बेसिकली हीटेड लिक्विड, ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू गैस। सो व्हेन यू कूल द लिक्विड तो ये गेट कन्वर्टेड इनटू, व्हेन यू कूल द गैस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ये क्या प्रोसेस हो गया भाई साहब, कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज दिस लिक्विड कन्वर्जन टू दिस, ये आपका भाई साहब क्या हो रहा है, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस, इसको अपन बोलेंगे वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज नोन एज वेपराइजेशन ऑन हीटिंग एंड द प्रोसेस ऑफ conversion of gas to liquid on cooling is known as condensation, ठीक है। Are we clear to this one people? हम समझम। The process of changing of a gas vapor to a liquid by cooling is called condensation. इसको अपन बोलेंगे condensation। तो आप देखो समझ लो ये आपका condensation का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सन के उससे यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल वाटर वेपर बन जाएगा, और वाटर वेपर फिर से क्या करेगा, जब ऊपर जाएगा तो ठंडा हो जाएगा ये, और ठंडा हो जाएगा तो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही पानी नीचे गिरेगा, ठीक है। देखो सन के हीट से ये वेपराइज होके ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद ये बादल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ऊपर के टेम्परेचर्स बहुत कम है जिसकी वजह से वो फिर बरसात होकर नीचे गिर रहा है। तो गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सो द फॉलिंग ऑफ रेन इज ऑल्सो ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कंडेंसेशन, बिकॉज हाई अप देयर द क्लाउड्स विच आर primarily made up of water vapor get cooled to a lower temperature, and when the gas gets cooled to a lower temperature it gets converted into liquid and falls. Are we clear to these things people? Okay,
कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्टीम है, ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है। सो आप अगर देखोगे भाई साहब यहाँ पे वाटर वेपर बना, यहाँ से लेक्स और स्ट्रीम्स और सीज से यहाँ से वाटर वेपर बना, और ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस जो आपके प्लांट्स में होता है, प्लांट्स के लीव्स में हमेशा वाटर लॉस होता रहता है। तो ये वाटर वेपर ऊपर गया, ये क्लाउड बना, और ये क्लाउड भाई साहब बरसा, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज फॉलोइंग। इन दिस प्रोसेस वाटर वेपर फॉर्म्ड ड्यू टू इवेपोरेशन राइजेस अप, द टेम्परेचर इज लो, सो वेपर कंडेंसेस टू लिक्विड एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। तो ये वेपर किस में कन्वेंस हो जाएगा भाई साहब, लिक्विड एंड क्लाउड्स, ठीक है। तो लिक्विड टू सॉलिड ये अपन कल पढ़ेंगे भाई साहब, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल। कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप स्टडिंग एज वेल।